students. Now we will start our new topic, that is position of promoters. Promoters कौन होते हैं, क्या काम करते हैं, किस तरीके से उनको मोटिवेशन मिलती है, उनका क्या रोल होता है इन द बिजनेस के अंदर, और बाकी सारी चीजें जो कि प्रमोटर्स के बारे में होती है वो अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। प्रमोटर एक तरीके से कंपनी के ट्रस्टीज नहीं होते, दे आर नॉट कॉल्ड द ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी, they are called the promoters of the company because they promote the business firm by doing something so that the position of the business has been improved and the business which the company is doing right now, they will move to the advanced level so that the sale of the business has been increased, and because of that the profit level of the company has also been increased. So this is the main thing, that promoters are not the trustees, they are just the promoters who promote the company by asking the people or by making new plans so that the profit of the company can be increased. Next, they enjoy a fiduciary position with the company which they must not misuse. उनको एक अच्छे रेपुटेटेड पोजीशन मिलती है कहाँ पे, कंपनी के अंदर, जिसको उनको एक चीज बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि दे शुड नॉट मिसयूज दैट पोजीशन। उनको जो भी वहाँ पे पोजीशन मिली है कंपनी के अंदर, या जो भी उनको ब्रांच मिली है, जो भी उनको मेन ऑफिस की जो मेन हेड मिला है, उनको उसका जो पोजीशन मिली है उसको मिसयूज नहीं करना है। सो दिस इज द वर्क ऑफ द प्रमोटर, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द प्रमोटर, दैट वॉट एवर दे हैव गॉट इन द पोजीशन इन द कंपनी साइड, दे शुड यूज दैट इन increasing or helping the company in case of profit, and they should not misuse that thing, and if they will misuse that thing then the company may suffer a loss, or the promoters may be has to be removed from the company because the company thinks that he is not a eligible person to work for the work in the company. Next, they can make a profit only if it is disclosed, but not make any secret profit. What does it mean? The third point means that if they want to have a profit, or if they want to earn some money from the business in the form of profit, then they should disclose that thing at the time of joining. If they did not disclose that thing, that if we will make a profit of company till this level, then we should get return in the form in some amount of money in the return of the profit which we have helped the company to receive. But if they make any secret profit, means they did not disclose the anything, they sell the product of the company to the individual and keeping all the money with them in the form of profit, then they cannot do this kind of thing. They can only do the things which they have disclosed in the memorandum of article or memorandum of association. If they want to earn a profit other than that, then the company has to fire them out of the company so that the company should not suffer a loss in the future, or the promoters does not get a secret profit by selling the product to the individual. Next, we will talk about they are not legally entitled to claim the expenses incurred in the promotion of the company. लीगली जब अपन बात करें तो उनको कोई राइट नहीं होता कि जो भी उन्होंने काम करा है उस काम के अंदर जो भी खर्चा, जितना भी खर्चा हुआ है, वो कंपनी उनको देने के लिए लायबल नहीं है। कंपनी देती है, इट्स वेल एंड गुड, बट दे कैन नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम। वो कोई बाउंडेशन नहीं है, उनके पास कोई पाबंदी नहीं है कि वो कंपनी से पैसा मांगे। कंपनी देती है, वेल एंड गुड है, कंपनी नहीं देती तो भी वो कुछ नहीं कर सकते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ द प्रमोटर इज दैट इफ दे डू एनी एक्सपेंडिचर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वर्क ऑफ द कंपनी, all the expenses which have occurred, only the promoter has to pay that expenses. The company will not be liable to pay any of the expenditure whatever they have done to promote the product. Next, we will study the next topic, that is incorporation. Incorporation क्या होता है? When promoters
they make an application for the incorporation, and that application has to be submitted to the registrar of the company, so that the company can be in the form of incorporation. company incorporation की फॉर्म में चल सकती है। और बेसिकली अपन इनकॉर्पोरेशन करते क्यों हैं? जिससे कि हम एक बेसिकली रजिस्टर्ड ऑफिस एक कंपनी का सेटअप कर सके, और जिससे एक कंपनी का एक फिक्स एड्रेस होता है कि ये कंपनी यहाँ पे इसका हेड ऑफिस है या इसका मेन ऑफिस यहाँ पे है, उसके बाद जहाँ आपको खोलनी है वहां ब्रांच खोल सकते हो। इट मस्ट हैव अकम्पनीड विद द सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। अब इनको रजिस्टर ऑफ कंपनी में जब आप एप्लीकेशन फॉर्म करते हो, तो एप्लीकेशन फॉर्म करने के साथ साथ आपको कुछ चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स है, वो और सबमिट करने पड़ते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्यूली स्टैम्प्ड, साइंड एंड विटनेस एटलीस्ट 7 मेंबर्स। जो भी आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया है उस पर स्टैम्प लगना चाहिए, साइन होना चाहिए, और विटनेस के साइन होने चाहिए, और करीबन जो विटनेस होनी चाहिए वो करीबन कितने मेंबर्स होने चाहिए? 7 मेंबर्स होने चाहिए। उन सबके साइन होने चाहिए, तभी आप इनकॉर्पोरेशन के अंदर फॉर्म फिल करके फाइल कर सकते हो। इसी तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी स्टैम्प और विटनेस होना चाहिए। इसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर 7 तो जरूरी नहीं है, बट हाँ ये स्टैम्प एंड विटनेस दोनों के साइन होने चाहिए, स्टैम्प पे साइन होने चाहिए। रिटर्न कंसर्न ऑफ द प्रपोज डायरेक्टर, जितने भी डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने भी काम करने की सोची है, उन सबकी जो रिटर्न कंसर्न है वो लिखी रिटर्न में चाहिए, ऐसा ओरली नहीं कि हम भी काम करने के नहीं। जितने भी डायरेक्टर्स हैं एक कंपनी के अंदर, वो सब रिटर्न में लिख के देने चाहिए कि हाँ हम इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो जब तक वो रिटर्न में नहीं देंगे तब तक आप इनकॉर्पोरेशन के लिए फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। एग्रीमेंट, जितने भी डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट्स के बीच में बना हुआ है, उन सबके बीच में प्रपोज एग्रीमेंट बनता है, या जितने भी डायरेक्टर्स आने वाले हैं, जितने भी होने वाले हैं, उन सबके बीच में एक एग्रीमेंट बनता है। उस एग्रीमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जब अपन इनकॉर्पोरेशन फाइल करते हैं या फिर एक परमानेंट ऑफिस फाइल करते हैं, किसका? एक कंपनी का। साथ में और क्या होता है कि जब अपन एक एग्रीमेंट की कॉपी लगाते हैं तो उसके साथ साथ अपना रजिस्टर्ड लेटर ऑफ और नेम ऑफ द कंपनी, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। इन तीनों चीज़ों के बिना इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। साथ में जो पेमेंट आपने करा है किसके अंदर? मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन में जो आपने फीस दी है, रजिस्ट्रेशन की फीस दी है, उसकी आपको स्लिप चाहिए होती है। इससे कि आप ये कंफर्म कर सको कि हाँ मैंने यहाँ पे ये फिल करा के फॉर्म करा के फीस दी है। एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, जो ऑफिस का एग्जैक्ट एड्रेस है, एक्यूरेट एड्रेस, वो देना बहुत मैंडेटरी होता है। अगर अपन ने वो एड्रेस नहीं दिया तो अपना ऑफिस अगर बार बार शिफ्ट करते रहे तो वो अपने को हर बार ये फॉर्मेलिटीज वापस करनी पड़ेगी। साथ में जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट है किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए, वो सब प्रॉपर पूरी सीक्वेंस वाइज अरेंज होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए और डिक्लेयर होनी चाहिए कि हाँ whatever we are doing it with all the approval of directors। हम जो भी काम कर रहे हैं वो सब सबकी सहमति से मिलकर कर रहे हैं, और उसके बाद हमें ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहिए, तभी हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन मिल सकता है, जो कि हमें रजिस्टर ऑफ कंपनी में जाके सबमिट करना पड़ेगा, और साथ में ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद ही हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन का जो पार्ट है वो मिल पाएगा। Now students, we will study our next topic, that is effect of the certificate of incorporation। जो अपने को सर्टिफिकेट मिलता है इनकॉर्पोरेशन का, उसकी हमारे बिजनेस फर्म पे या हमारे बिजनेस कंपनी में क्या असर पड़ता है, ये अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट, जिस दिन अपन इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट बना लेते हैं उस दिन एक नई कंपनी का जन्म हुआ होता है। On that day we can say a new company is born, as the date is printed on the certificate of incorporation। जो भी डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे प्रिंटेड होती है वो कंपनी की एक तरीके से न्यूली बॉर्न कंपनी बन जाती है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक उनको एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हैं, दैट इज कॉल्ड DIN नंबर। उसमें क्या होता है
कि एप्लीकेशन जो आपने सबमिट करी थी उसके 1 मंथ के अंदर अंदर ही आपको ये DIN नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। ये कब प्रोवाइड कराती है? जिस दिन आपने डेट रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन आपको मिली उसके 1 महीने के अंदर अंदर। नेक्स्ट, ऑन द इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अ प्राइवेट कंपनी कैन इमीडिएटली कमेंस इन बिजनेस। जैसे ही आपको या किसी भी प्राइवेट कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है उसी दिन से कंपनी अपना बिजनेस चालू कर सकती है। सो दीज 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। पहली चीज, जिस डेट को हमारे हमारे जो डेट लिखी मेंशन करी हुई होती है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के ऊपर, वो डेट होती है जिस दिन हम ये कह सकते हैं कि एक नई कंपनी का जन्म हुआ है। नेक्स्ट, जो रिसिप्ट आपने एप्लीकेशन मिली है उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको एक DIN नंबर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अवर इंडिया। ठीक है, उस DIN नंबर को अपन कह सकते हैं डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उसके बाद अपन उसको वर्क कर सकते हैं। थर्ड, जैसे ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है कोई भी प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। अब अपन नेक्स्ट सीट पढ़ते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या होता है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जब भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या करती है? लोगों से लेती है। कैसे? सर्टिफिकेट इशू करके। सर्टिफिकेट कौन से? इन द फॉर्म्स ऑफ शेयर्स एंड इन द फॉर्म्स ऑफ डिबेंचर्स। जैसे ही वो सर्टिफिकेट इशू करती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, वो इजीली अपना फंड इंक्रीज कर सकती है और जो भी उनका प्लान है, जिस तरीके से भी उनको बिजनेस करना है, वो प्लान बना के बिजनेस करने के लिए वो रिक्वायर्ड सफिशिएंट फंड उनके पास होता है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्कआउट कर सकती है। अब फंड रेज करने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज चाहिए? ये 6 फॉर्मेलिटी चाहिए होती है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला होता है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, उसका अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, इसको अपन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। इसका अप्रूवल चाहिए होता है। जब तक कि ये अप्रूव नहीं करेगी तब तक प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कोई सी भी कंपनी लोगों से पैसा मांग नहीं सकती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। उसके बाद अप्रूवल हो गया, उसके बाद अपन ने इस प्रोस्पेक्टस फिल करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है। उस फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस में आपको क्या क्या चीज आप कंपनी कर रही है, क्या क्या चीजें आप कितने के शेयर दे रहे हो, उसके अगेंस्ट में कितनी सिक्योरिटी आप दे रहे हो, क्या क्या चीज होती है, वो सब दी जाती है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स, जितने भी ये तीनों लोग होते हैं उनसे अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है, जिससे कि हम उनको समझा सकते हैं कि हम क्या काम करने के लिए, हमारा बिजनेस प्लान क्या है और किस तरीके से हमें फंड चाहिए। उसके बाद 2 चीज होती है, एक होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एक होता है मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन में अपने पास ये आता है, एक आपने सेबी से अप्रूवल करा कि आप लोग 10,000 शेयर इशू करेंगे। 10,000 शेयर इशू जब आप कर रहे हो, आपको सेबी ने अप्रूवल दे दी, उसके अंदर जो मिनिमम लेवल है सब्सक्रिप्शन का वो करीबन कितना है? 5,600। इतने तो सब्सक्रिप्शन आपको करने ही करने हैं, आपको फंड लोगों से लेना ही लेना है। इतने शेयर्स तो आपको लोगों को देने ही देने हैं, ये कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, और मैक्सिमम मतलब अपन 10,000 के 10,000 शेयर एक बार में नहीं, 2 पार्ट में इशू कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, जो स्टॉक एक्सचेंज के मार्केट के अंदर अपना नाम लिस्टेड हो, उसके लिए एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। उस एप्लीकेशन को अप्रूवल होने के बाद, सेबी के डॉक्यूमेंट देखने के बाद आपकी कंपनी का नाम स्टॉक एक्सचेंज में प्रिंटेड हो जाता है। उसके बाद आप शेयर्स ट्रांसलेट कर सकते हो और खरीद सकते हो। उसके बाद लोगों को शेयर देना, लोग आपके शेयर्स लेते और उसके अकॉर्डिंग शेयर्स को आप आपके पास फंड आता है, उस फंड को आप अपने कंपनी के प्रॉफिट में लगा सकते हो, और उससे कंपनी को कोई प्रॉफिट हो रहा हो और कोई इंडिविजुअल जिसने की शेयर खरीदा है, अगर वो शेयर बेचता है तो उसका जितना प्रॉफिट आपको बनता है उस बंदे को, वो आपको उसको देना होता है। ये कुछ फंड के रिक्वायरमेंट से पहले की फॉर्मेलिटीज है जो कि प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कोई भी कंपनी को करनी होती है। उसके बाद ही आप फंड रेज या इशू कर सकते हैं। थैंक यू।